Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 21st lecture in medical billing basic course. So today we are going to discuss all about HIPAA rule. What is HIPAA rule? What is the abbreviation? What is the classification? What is the definition of this HIPAA rule? Health Insurance Portability and Accountability Act. So what are the three basic rules of this HIPAA rule, and what is the other kind of a stuff which is related to this HIPAA rule? So we are just going to completely discuss this in this lecture. So let's start the lecture. Okay, here we go. So the HIPAA rule, which stands for the Health Insurance Portability and Accountability Act, is a significant piece of legislation in the United States healthcare system. Means this is the basic legislation in the healthcare industry. ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम कानून है यूएसए हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, इस कानून के तहत पेशेंट्स का जो डाटा होता है किसी भी प्रोवाइडर के पास, किसी भी फैसिलिटी के पास, किसी भी इंश्योरेंस के पास, दैट शुड बी सिक्योर्ड एंड प्राइवेट. ओके, वो ये नहीं हो सकता कि हाँ भी वो सबके लिए ही इजीली अवेलेबल हो, इजी एक्सेसिबल हो, बट दैट इज़ क्वाइट private, that is quite secured. Enacted in 1996, HIPAA has had a profound impact on the healthcare industry, primarily in the terms of safeguarding patient information and promoting the portability of health insurance coverages. ठीक है, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज भी आ जाती है. इसके अंदर पेशेंट्स का जो डाटा होता है, सारा डाटा, ठीक है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स होगी, उसकी डायग्नोसिस होगी, उसके ऊपर क्या क्या प्रोसीजर्स या क्या क्या उसके ट्रीटमेंट्स हुए हैं, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्राइवेट होती हैं और वो सिक्योर्ड होती हैं. Those are not available for anyone but for the concerned persons or concerned departments. Here are the key aspects and importance of HIPAA in the USA healthcare system. ठीक है, इसके कुछ key importances हैं जो कि I am just going to discuss with you guys. So here we go. Privacy rule means privacy rule क्या होता है इसके अंदर. HIPAA privacy rule establishes national standards to protect individuals, medical records and other personal information. So HIPAA बेसिकली जो रूल है उसके अंदर एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी रूल. इसके अंदर जो पेशेंट्स का डाटा होता है उसको प्राइवेट रखा जाता है, ठीक है, और उसकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है वो सारी प्राइवेट रखी जाती है. दैट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड. ओके, it gives patients greater control over their health information by granting them rights such as the right to access their medical records, request corrections, and control sharing of their health information. Means ये कि उनकी मर्जी की, पेशेंट की मर्जी के बगैर you are not supposed to share their information with any other. Okay, they can access their information at any time. ठीक है, पेशेंट कोई भी पेशेंट है वो अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और उसका जो रिकॉर्ड होता है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी ऑथोराइजेशन के बगैर यू आर नॉट सपोज टू शेयर दैट काइंड ऑफ अ स्टफ विद अदर इंश्योरेंसेज और विद अदर थर्ड पार्टीज. This rule is vital in safeguarding patients' confidentiality and truth in the healthcare system. Okay, trust in the healthcare system. So ये रूल बहुत ही ज़्यादा मीन्स है कि वाइटल होता है, बहुत ही ज़्यादा अहम है इन सेफ गार्डिंग द पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन. मीन्स पेशेंट्स का जितना भी डाटा होता है वो सारा सिक्योर्ड होता है, ठीक है. दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर common people. Okay, that is mainly focused on the different kind of people which are like you guys can say that patients का जितना भी डाटा होता है वो completely secured होता है, safeguarded होता है. Okay, so next we see what we have over here. It's security rule. The security rule complements the privacy rule by setting standards for the security of electronic protected health information, EPHI. Healthcare providers, health plans, and healthcare clearinghouses must implement safeguards to protect EPI from breaches or unauthorized access. Means ये जो पेशेंट का डाटा होता है इसको सेफ गार्ड किया जाता है. इसके अंदर जितने भी पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, पेशेंट की टेस्टिंग होती है, पेशेंट के सैंपल्स के पिक्चर्स होते हैं, anything related to patient's data, patient's information, that is completely safeguarded. ठीक है, इसको ब्रीच से बचाया जाता है. लाइक ये है कि किसी का कोई अकाउंट हैक ना हो जाए, किसी की कोई जो इंफॉर्मेशन है वो अनएक्सेसिबल हो, ठीक है, किसी हैकर्स ने उसको एक्सेस ना कर पाएँ. ये कम्प्लीटली तौर पर इसको सिक्योर रखा जाता है. दिस हेल्प्स इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड अदर डिजिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन. सो इसके ज़रिए ये है कि पेशेंट्स की जो डाटा होता है, पेशेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, सो everything is completely secured and safeguarded. Okay, so next what we have, transaction and code set standards. Transaction and code set standards क्या होते हैं? HIPAA established standardized code sets. Means ये HIPAA जो है एक
ने इस्टेब्लिश की हैं कुछ स्टैंडर्डाइज्ड कोड्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फॉर्मेट्स, उसके कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसके फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर हेल्थ केयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जितनी भी हेल्थ केयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक एक फॉर्मेट होता है। दिस स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस इन हेल्थ केयर, मेकिंग इट ईजियर फॉर डिफरेंट एंटिटीज इन द इंडस्ट्री टू कम्युनिकेट एंड प्रोसेस ट्रांजेक्शन सच एज इंश्योरेंस क्लेम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग। मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हो रही होती है, ठीक है, लाइक यू आर जस्ट एडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स इनटू योर सॉफ्टवेयर and sending the claims and adding the different kind of CPTs and ICDs, ठीक है, all these kind of a stuff is completely secured। ठीक है, इनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके स्पेसिफिक कोड्स होते हैं कि हाँ भी स्पेसिफिक आपने इसकी कोडिंग करनी होती है, और स्पेसिफिक इनकी ट्रांजेक्शंस के मीन्स ये रूट्स होते हैं। Okay, so you are going to adhere to all the policies of this HIPAA rule while transferring the data from one entity to another entity. Okay, so this was it. Next, what we have, unique identifiers. HIPAA introduced unique identifiers for healthcare providers, health plans and employers. Okay, means healthcare providers के लिए और healthcare जो plans होते हैं उनके लिए specific unique in identifiers होते हैं, and employers के लिए भी। These identifiers streamline electronic transactions, reduce paperwork and help ensure the accurate identification of entities involved in the healthcare processes. So इस unique जो identifiers होते हैं इसके ज़रिए ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली ही मोस्टली सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, बिलिंग का वैसे भी मोस्टली काम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। यू गाइस आर जस्ट एडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू योर बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड जस्ट ट्रांसफरिंग द क्लेम्स फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी वाइल इलेक्ट्रॉनिकली। पेपर वर्क होता है बट बहुत लिमिटेड होता है, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ अ पेपर वर्क, सो दे आर जस्ट गोइंग टू यूज दीज यूनिक आइडेंटिफायर्स। ओके, so the next one is portability and accountability. What is portability and accountability? HIPAA's portability provisions address the issue of pre-existing conditions and job-related health insurance coverages. ठीक है, इसके अंदर कोई पहले कोई कंडीशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, एंड जॉब रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। अगर आप किसी कंपनी के अंदर कोई जॉब करते हैं, ठीक है, और आप उस जॉब को स्विच करते हैं, तो आपकी जो पिछली प्रीवियस जो जॉब है उसके अंदर कोई अगर आपकी इंश्योरेंस थी, आपकी कंपनी की तरफ से थी, सो नेक्स्ट जगह पर आप जाएंगे किसी और जगह पर जॉब करने के लिए, देन व्हाट्स दैट मीन्स आपकी पिछली इंश्योरेंस और अगर नेक्स्ट इंश्योरेंस जो होगी वो कैसे एडहियर करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, या किस तरीके से वो फिर इनेक्टेड होंगी। ठीक है, सो उसके अंदर ये आ जाता है, इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स कैन मेंटेन देयर हेल्थ इंश्योरेंस व्हेन चेंजिंग जॉब्स। जब भी मींस पोर्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जब भी कोई बंदा या कोई एम्प्लॉय जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जॉब को स्विच करता है, तो उसकी जो प्रीवियसली जो इंश्योरेंस एक्टिव होती है वो एक्टिव ही रहेगी। जॉब्स ओके आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ इवेंट्स लाइक मैरिज और द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, जब उसकी कोई अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी जो इंश्योरेंस एक्टिव थी वो वैसे की वैसी ही रहती है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। एंड इफ़ दे आर गोइंग टू बर्थ मीन्स कोई अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी भी इंश्योरेंस बाद में कराई जा सकती है, बट ये है कि उसके लाइक ये है कि उस जो मेन इंश्योर्ड पर्सन होता है उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो इनएक्टिव रहती है, वो एक्टिव रहती है। दिस प्रोमोट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड प्रिवेंट्स कवरेज गैप्स। ठीक है, तो इसके अंदर यह है कि एक तसलसल रहता है और जो कवरेज के अंदर कोई गैप्स वगैरह आ जाते हैं तो वो भी नहीं रहते। ओके, so next we see what we have over here, enforcement. HIPAA empowers the US Department of Health and Human Services, HHS, to enforce its provisions and impose penalties for non-compliance. ठीक है, HIPAA का जो मीन्स यूएस का डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, ये कंप्लाइंस को फोकस करता है कि ये कहते हैं कि हाँ भी जितने भी HIPAA के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर पेशेंट्स का डाटा सिक्योर्ड किया जाता है, प्राइवेट रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, so every entity who is going to deal with these records, they should adhere to the policies and the rules and the regulations of HIPAA rule. ठीक है, अगर कोई इसके साथ कोई छेड़खानी करता है, कोई भी इसके अंदर ब्रीच करता है, कोई भी अगर इसके अंदर कोई इशू आता है, कोई चीज़ इस तरीके की होती है जो कि कानून के मुताबिक नहीं थी, then they are going to face different kind of penalties, imprisonments as well. So this enforcement mechanism serves as a deterrent, and ensures that covered entities take their obligations seriously. So इसकी बिना पर यह है कि जो मैकेनिज्म चल रहा होता है वो डिफरेंट एंटिटीज़ जो पेशेंट्स का डाटा यूज़ कर रही होती हैं वो इस ऑब्लिगेशन को, इस फ्रीज़े को, इस काम को सख्ती से इसके ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, research and public health. While HIPAA protects patients' privacy,
मीन्स पेशेंट्स की जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट करता है. इट आल्सो अलाउज फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च पर्पसेस एज वेल. ठीक है, इससे ये है कि अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, लाइक अगर जिस तरीके से कोविड आया था, कोविड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स को कोविड स्टार्ट के अंदर हुआ. ठीक है, उसके बाद ये है कि जाहिर सी बात है उनकी अब रिसर्च की जाती है कि हाँ भी जाहिर सी बात है उसके लिए वैक्सीन बनानी थी. ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए उस पेशेंट्स का डाटा डिफरेंट जो लैब्स थी उनके साथ शेयर करना पड़ा था. जाहिर सी बात है जब तक आप डाटा शेयर नहीं करेंगे कि हाँ भी उसकी क्या कंडीशन है, उसके क्या एंटीजन्स थे, क्या कौन सा वायरस था, किस तरीके से वो आया, किस तरीके से उनको मीन्स ये कि कंप्लीट उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी that should be transferred from one entity to another entity because to create different kind of a research to make different kind of a vaccines. Okay, so this balance ensures that essential healthcare initiatives can still access necessary data while respecting privacy. ठीक है, प्राइवेसी को मतलब मलहूज़ खाते रखते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा आप लोग कर सकते हैं, बट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस के लिए स्पेसिफिक केसेस होते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से डाटा शेयर किया जा सकता है. बट पेशेंट्स का डाटा भी मतलब ये है कि सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड और कंट्री. ओके, so this is research and public. So next we see what we have: electronic health records. HIPAA has encouraged the adoption of electronic health records by providing guidelines for their secure यूज़ एंड एक्सचेंज. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो भी मीन्स ये है कि आप शेयर करते हो किसी भी पेशेंट का डाटा, वो सिक्योर्ड होना चाहिए. ठीक है, उसकी कोई भी एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, दैट शुड बी सिक्योर्ड in USA healthcare system according to HIPAA rule. EHRs have the potential to improve patients care, reduce errors and enhance efficiency in healthcare delivery. ठीक है, EHRs मीन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या इनकी पोटेंशियल होती है कि हाँ ये पेशेंट्स का जो डाटा होता है उसको सिक्योर कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भी अगर एरर आ रहा होता है तो उसको भी मीन्स ये कि रिमूव कर सकते हैं. एंड इनहांस एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर डिलीवरी. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो डिलीवरी होती है लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ records from one entity to another entity, that is also going to be secured and potentially well. Okay, so these kind of things are happening in HIPAA rule. There were different key details which were related to HIPAA rule. So let's see what we have next. So there is a 3 rules of HIPAA. Means HIPAA के basically 3 rule होते हैं. ठीक है, now we are going to discuss all about these 3 rules. What is the first rule? That is HIPAA privacy rule. We have a little bit talked about this one rule in the initial lecture, initial stage of this lecture, but now we are going to discuss in detail. Okay, so the second HIPAA rule is HIPAA security rule. Okay, and the third one is HIPAA breach notification rule. ठीक है, लाइक है कि कोई अगर नोटिफ मीन्स ये है कि पेशेंट का डाटा ब्रीच हो जाता है, एक्सेस कोई हैकर उसको एक्सेस कर लेते हैं, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. We are going to discuss all this in these 3 rules of HIPAA. Okay, so here we go. 3 rules of HIPAA. HIPAA, the Health Insurance Portability and Accountability Act, includes 3 main sets of rules that govern the use and protection of individuals' health information. इसके अंदर बेसिकली वही चीज़ है कि हाँ भी पेशेंट का जो डाटा होता है वो उसको सेफ गार्ड किया जाता है. So the first one is HIPAA privacy rule. The privacy rule sets national standards for protecting the privacy and confidentiality of individuals' medical records and personal health information. Key provisions of the privacy rule include. ठीक है, सो HIPAA प्राइवेसी रूल के अंदर क्या जाता है कि हमें जितनी भी पेशेंट का डाटा है, पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस कोड्स, ICDs, modifiers, everything related to patient's data, that is going to be secured, that is private, that is confidential. Okay, so इसकी कुछ और रूल्स हैं लाइक की प्रोविजंस ऑफ द प्राइवेसी रूल इंक्लूड. इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, दैट इज़ पेशेंट राइट्स. It grants patients specific rights concerning their health information, including the right to access their medical records, request corrections, and control the sharing of their personal health information. Okay, उनकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड, वो कभी भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई करेक्शन करनी है, लाइक है कोई डाटा गलत है, देन दे कैन आल्सो रिक्वेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्शंस एज वेल. Okay, and while sharing you guys need to be authorized, means आप लोगों को authorization लेनी पड़ती है from the patient that we are going to share your data from one entity to another entity. Like when the billing companies are going to share different kind of data of the patient, they should get different kind of authorizations from the patients. ठीक है, जब तक patient authorization नहीं देता, you are not supposed to share their data. Okay, so the next one is authorization.
as we were discussing about the authorization, healthcare providers and other covered entities must obtain written authorizations. Means उनकी आप written authorization लेते हो from patients before disclosing their personal health information for purposes not related to treatment, payment or healthcare ऑपरेशंस. ठीक है, उनकी ऑथोराइजेशन देनी पड़ती है कि हाँ भी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर योर डाटा फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी. ठीक है, एक मीन्स अमले से या एक आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जब आप डाटा उनका शेयर करते हैं देन यू गाइस शुड टेक देयर ऑथोराइजेशन. रिटन ऑथोराइजेशन आप लोगों को चाहिए होती है. Minimum necessary standard covered entities must limit the use and disclosure of personal health information to the minimum necessary to accomplish the intended purpose. Means कोई भी पर्पस है तो वो कोशिश की जाती है कि हाँ उसके अंदर पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनिमम ही इस्तेमाल हो. मीन्स उसके अंदर मिनिमम यूज़ हो, उसके अंदर ज़्यादा उसका डाटा शेयर ना किया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट किसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पेशेंट इंश्योरेंस को उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं तो उसके अंदर कर सकते हैं. दैट इज़ समथिंग एल्स. बट कोशिश यही होती है कि हाँ भी जितना मिनिमम हो उनका डाटा यूज़ हो, यूटिलाइज हो, उनका डाटा एक्सचेंज और शेयर हो. Notice of privacy practices. Covered entities must provide patients with a notice of privacy practices that explains how their personal health information will be used and disclosed, as well as their rights under HIPAA. अब जो डिफरेंट काइंड ऑफ मींस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या कोई भी दूसरी एंटिटीज़ हैं जब वो पेशेंट का डाटा यूज़ कर रही होती हैं तो उनको पेशेंट्स को बताना होता है कि हम आपका ये पार्ट मींस इस आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़. मींस हम आप लोगों का कौन सा डाटा जो है वो पेशेंट्स का जो डाटा है वो इंश्योरेंस के साथ शेयर करेंगे या किसी और एंटिटी के साथ शेयर करेंगे. ठीक है, ये पेशेंट के इल्म में होना चाहिए. दैट शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द पेशेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ अ डाटा यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्पसेस लाइक बिलिंग. Okay, while sending the different claims to insurances so you just need to get them acknowledged. ठीक है, पेशेंट्स को कंफर्म होना चाहिए, पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि हाँ भैया आप लोगों का कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों की वी आर जस्ट गोइंग टू यूटिलाइज एंड डिस्क्लोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज़. Okay, so the next we see penalties. So penalties क्या होती हैं? Violations of privacy rule can result in civil and criminal penalties including fines and imprisonment as well. USA healthcare system के अंदर that is going to be very very vital कि हाँ भी अगर किसी पेशेंट का डाटा उसकी अथोराइजेशन के बिना अगर उसका ब्रीच होता है, उसका मीन्स मिसयूज़ होता है, देन जिसकी वजह से होता है या जो इसके अंदर पाया जाता है देन दैट पर्सन और दैट फैसिलिटी और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ अ वाइटल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ मीन्स ये आप कह सकते हैं बहुत ही उसके वियर्ड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वर्स कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो दैट दे आर गोइंग टू बी फाइंड. उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो सकती है, उनको भारी फाइन किए जा सकते हैं, हेफ्टी फाइन्स होते हैं एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि यूएसए के अंदर हिप्पा रूल को एडहेयर करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना दैट इज़ कम्प्लीटली मैंडेटरी. ओके, सो इसके अंदर सेकंड जो रूल है वो देखते हैं हिपा सिक्योरिटी रूल. हिपा सिक्योरिटी रूल क्या होता है? द सिक्योरिटी रूल कम्प्लीमेंट्स द प्राइवेसी रूल बाय एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन. ठीक है, मीन्स जितनी भी प्रोटेक्टेड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इंफॉर्मेशन है पेशेंट की वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. इट फोकसेस ऑन सेफ गार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन. की एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी रूल आर इंक्लूड. ठीक है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो हम उनको देखते हैं. बट यह है कि सिक्योरिटी के अंदर जितनी भी पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है उनको कैसे सेफ गार्ड करना है, कैसे उनको सिक्योर करना है, कैसे उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है. सो दीज देयर शुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स विच आर वी जस्ट गोइंग टू फॉलो. सो द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स. पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं फॉर मैनेजिंग द सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल आर यू गाइस कैन से दैट पेशेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन. ठीक है, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन. जितनी भी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. सो उनके तहत जो पेशेंट का डाटा होता है उसको सिक्योर किया जाता है. ओके, so the next one is physical safeguard. How physically patient's data is going to be secured. Physical security measures to protect EPIs stored on premises or in data centers. Means data centers different kind of there are different kind of data centers in which patient's records is kept confidential
इज़ सेफ गार्डेड। सो उसके लिए सर्वेलेंस कैमराज होते हैं, मीन्स ये कि सिक्योरिटी होती है। सो इस तरीके से पेशेंट्स का जो डाटा होता है उसको भी फिजिकली भी सिक्योर किया जाता है। टेक्निकल सेफगार्ड्स, टेक्निकल measures to protect EPIs including access controls, encryption and audit trails as well। ठीक है, टेक्निकली किस तरीके से उनको सेव किया जाता है, उनके डाटा को सिक्योर किया जाता है, इंक्लूडिंग एक्सेस कंट्रोल्स, मींस एक्सेस, उस डाटा को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट पासवर्ड्स, डिफरेंट कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं, इंक्रिप्शन की जाती है उसके ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ वही पासवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एंड ऑडिट ट्रेल्स होते हैं, मींस मंथली या ये है कि उनके एनुअली या क्वार्टरली उनके ऊपर ये है कि ऑडिट भी किया जाता है। सो इन दिस वे टेक्निकली देयर डाटा इज आल्सो गोइंग टू बी सिक्योर्ड। What is organizational requirements or contracts and agreements that ensure businesses, associates, and other third parties company with comply with HIPAA security standards। So organizational requirements क्या होती हैं कि हाँ भी किसी भी कोई भी entity जब कोई patient का data यूज़ करती है, दैट शुड एडहियर टू डिफरेंट काइंड ऑफ 3 रूल्स ऑफ हिपा। ठीक है, पेशेंट्स का जो भी डाटा दे आर गोइंग टू यूज़, दैट शुड बी सिक्योर, दैट शुड बी सेफ गार्डेड, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, okay, between the different entities which they are going to use this one। Okay, so this was one the security tool। Okay, so the next is risk analysis। Covered entities are required to conduct a risk analysis to identify potential security vulnerabilities and develop a risk management plan। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर लाइक है कि अगर कोई डाटा मीन्स ये है कि ब्रीच हो जाता है, then what they are going to do, how they are going to deal with that, how they are going to deal with that kind of a risk। so इसकी मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट मीन्स ये है कि स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। सो कवर्ड एंटिटीज मीन्स जो भी एंटिटीज इस डाटा को मीन्स ये कवर कर रही होती हैं, इस डाटा को यूटिलाइज कर रही होती हैं, आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ रिस्क एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके फिर वो रिस्क एनालिसिस किया जाता है ताकि यह है कि उस जो पेशेंट्स का डाटा है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ठीक है, किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट की जाएगी उसके लिए डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। Breach notification. Covered entities must notify affected individuals and the Department of Health and Human Services in the event of a data breach involving EPHIs। ठीक है, कोई भी अगर ब्रीच होती है, किसी भी पेशेंट का डाटा ब्रीच होता है, उसको अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस करता है, देन क्या करना है, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज को भी इन्फॉर्म करना होता है, जो डिपार्टमेंट है यूएस का। ठीक है, और उस कंसर्न पेशेंट को भी इतला दी जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है दैट योर डाटा हैज़ बीन ब्रीच्ड, सो what kind of next steps they are just going to do, so that is in the next। okay, so breach notification भी होता है इसके अंदर। so the next is going to be HIPAA breach notification rule। ये third rule है, HIPAA breach notification rule third। okay, so the breach notification rule outlines the requirements for notifying affected individuals, means जिसका भी data affect होता है, like breach होता है तो उसको बताया जाता है ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज एंड इन सम केसेस द मीडिया को भी बताया जाता है कि हाँ भी इस पेशेंट का ये जो डाटा है ये ब्रीच हुआ है। फॉलोइंग अ ब्रीच ऑफ अनसिक्योर्ड PHIs। Key elements of breach notifications rule include, इसके कुछ key elements हैं, कुछ key aspects हैं that we are going to just discuss over here। so the definition of a breach means breach की definition क्या है। नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि हम किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के अंदर कोई मदाखलत की जाती है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जिसको एक्सेस करता है, दैट इज गोइंग टू बी ब्रीच। सो इट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ ब्रीच ऑफ PHIs एंड आउटलाइंस एक्सेप्शंस वेयर नोटिफिकेशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है, इट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ ब्रीच, मीन्स ब्रीच जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ऑफ PHIs एंड आउटलाइंस एक्सेप्शंस, और इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं, वेयर नोटिफिकेशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड, जिसके अंदर जो नोटिफिकेशन है उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, सो नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, किस जगह पर नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कवर्ड एंटिटीज मस्ट प्रॉम्प्टली नोटिफाई अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड इन सर्टेन केसेस द मीडिया अबाउट ब्रीच ऑफ अनसिक्योर्ड PHIs। ठीक है, जो भी प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है उसको जब भी उसके अंदर कोई ब्रीच होता है, देन इन सर्टेन केसेस दे आर जस्ट गोइंग टू बी लेट द पीपल नो, लेट द मीडिया नो एंड ऑल्सो द अफेक्टेड पर्सनल एज वेल दैट योर डाटा हैज़ बीन ब्रीच्ड। ओके, सो फिर उसके बाद ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स लिए जाते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सो नेक्स्ट इज timeliness। notifications must be made without unreasonable delay and no later than 60 days after discovering the breach। मीन्स जब भी कोई ब्रीच होती है तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर उस पेशेंट को, उस अफेक्टेड पर्सन को बताया जाता है कि हाँ भी आपका डाटा जो है ब्रीच हुआ है, आपका जो डाटा है उसका मिस यूज़ किया जा सकता है।
ठीक है, पहले तो उसके ऊपर देखा जाता है कि हाँ भी क्यों हुआ है, what were the reasons, who was the person, who are the entities who are just going to breach their data, मीन्स किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है। सो इस तरीके की सारी जो चीज़ें होती हैं उसको देखा जाता है, और उस पर्सन को भी बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि दैट योर डाटा हैज़ बीन ब्रीच्ड। ओके, इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। फिर उसको यह है कि जाहिर सी बात है उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको फिर यह है कि डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, उनको कन्विंस किया जाता है दैट वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द पर्सन, वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद दिस वन, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द हैकर्स और अनऑथराइज्ड पर्सन हु हैव जस्ट took away your personal information data. Okay, so next one is content notification. Notifications to individuals must include specific information about the breach, steps to taken to mitigate harm and contact information for further inquiries. ठीक है, कुछ notifications दिए जाते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स को बताया जाता है कि हाँ भी इस तरीके से ब्रीच हुआ है, स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट हार्म, इस कोई भी अगर उसकी वजह से हार्म हो सकता है तो उसको कम किया जा किए करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए जाते हैं। एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर, उसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये है कि डिफरेंट नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं जिससे ये है कि पेशेंट्स का जो डाटा है उसको मिसयूज़ होने से बचाया जा सके। ठीक है, so this was it. Now there is a summary of this HIPAA rule. We have just discussed all the aspects which were very mandatory and necessary to know while you are working in a healthcare industry of the US. So the HIPAA plays a crucial role in the USA healthcare system by balancing the protection of patient rights, privacy and data security with the need for efficient healthcare operations and continuity to coverage. ठीक है, इसके अंदर पेशेंट्स के जितना भी डाटा होता है, जो भी मीन्स ये है कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, उसके ट्रीटमेंट्स हो गए, उसकी डायग्नोसिस हो गई, मीन्स एवरी रिलेटेड सिंगल पेपर ऑफ रिकॉर्ड्स विच इज़ रिलेटेड टू पेशेंट। ठीक है, उसको सिक्योर करना है, कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पर मीन्स किस तरीक़ों से कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो कैसे करना है। ठीक है, so all this is being happen in this HIPAA rule. It has a profound impact on how healthcare organizations handle patients' information and conduct electronic transactions, ultimately contributing to the overall quality and integrity of the healthcare system. So इसके अंदर different जो organizations होती हैं patient का data use कर रही होती हैं, उनको different protocols, different procedures दिए जाते हैं that how you are just going to deal with this kind of a data, how you are going to exchange different kind of a piece of information from one place or one entity to another entity. Okay, so these three rules work together to protect individuals in health information and ensure the security and privacy of protected health information in healthcare settings. So ये जो तीनों rules हैं ये इकट्ठे ही means ये एक ग्रुप की शक्ल में, या आर यू गाइस कैन से दैट कनेक्टिवली ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लाइक ये कि प्राइवेसी रूल है, उसके अंदर पेशेंट्स की जो जितना भी डाटा है वो प्रोटेक्टेड किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, सिक्योरिटी की जाती है। अगर ब्रीच होता है तो ब्रीच होने के बाद फिर क्या स्टेप्स होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं। Violations of these rules can result in serious penalties, including fines and legal consequences. So it's crucial for healthcare organizations and their businesses associates to be compliant with HIPAA regulations. So ये बहुत ही ज़्यादा critical और crucial होता है, क्योंकि अगर if you are not going to adhere with different kind of HIPAA rules, then you are going to face different worse consequences. ठीक है, इसके बहुत ही ज़्यादा भयानक वो क्या कहते हैं consequences हो सकते हैं. So you guys are the persons who are going to deal with these medical records of the patients, they should adhere to the HIPAA rules. Okay, so thank you so much watching me again on my YouTube channel. So this was the lecture number 21. This is my email ID. You guys can contact me if you guys have any questions. If you guys need this information in PDF form, then I just can send you over there on your provided information. So thank you so much once again. Till then, inshallah, we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and your family. Stay safe at your home. Be blessed. Allah Hafiz.